ایک دن میری زندگی بدل گئی جب میں نے پہلی بار عدیل کو دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی، نہ زیادہ دبلا نہ موٹا، ایک خاص توازن والا جسم، چمکتی ہوئی سانولی رنگت اور گہری آنکھیں جو سیدھا دل کے اندر اترتی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ تھی جس سے وہ اور بھی معصوم لگتا تھا، مگر معصومیت کے ساتھ ایک کشش چھپی ہوئی تھی۔ اس کے پہنتے ہوئے کپڑے ہمیشہ تنگ اور فٹ بیٹھتے تھے، جیسے وہ اپنے وجود کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہو۔ پہلی ہی نظر میں وہ لڑکا مجھے ایسے لگا جیسے کوئی اجنبی روشنی میرے سفر کے اندھیروں میں اتر آئی ہو۔ کہانی: ٹرک ڈرائیور اور کنڈکٹر۔ میرا نام رحمت گل ہے، میری عمر 40 سال ہے اور میں پچھلے 15 برس سے ٹرک ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ سڑک میری زندگی ہے اور سفر میرا دوست۔ شادی کا وقت آیا تو قسمت نے ساتھ نہ دیا، نہ شادی ہوئی نہ گھر بس سکا، بس یہ ٹرک ہی میری دنیا بن گیا۔ ایک دن میں پشاور سے کراچی کا لمبا سفر لے کر نکلا تو راستے میں ایک بس اڈے پر میری نظر ایک لڑکے پر پڑی جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ وہ لڑکا کوئی دبلا پتلا یتیم سا نہیں تھا، بلکہ 18 سال کا بھرپور جسم رکھنے والا، بھرا بھرا چہرہ، کھلی رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں جس میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح سرخ اور چمکدار تھے۔ اس نے جینز اور ٹائپ کی قمیض پہن رکھی تھی جو اس کے وجود پر چپکی ہوئی لگتی تھی۔ نہ داڑھی تھی نہ مونچھ، بال سلیقے سے کٹے ہوئے اور ماتھے پر ہلکی سی لٹ اسے اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ وہ لڑکا باقی سب لڑکوں سے الگ لگ رہا تھا، جیسے سڑک کے شور میں کوئی گیت چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کون ہے جو میری آنکھوں کو یوں قید کر گیا ہے؟ وہ آ کر میرے قریب کھڑا ہوا اور بولا، بھائی جان مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں نوکری کی تلاش میں ہوں، کچھ بھی کر لوں گا۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر مٹھاس لیے ہوئے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو دل نے کہا کہ اسے ساتھ رکھوں۔ میں نے اسے اوپر بٹھا لیا اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں وہ ہنستا، باتیں کرتا اور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا تو کبھی میری طرف پلٹ کر دیکھ لیتا۔ اس کی نظریں جب مجھ پر ٹکتی تھیں تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا، جیسے کوئی برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ وہ بار بار میری خدمت کرتا، چائے لاتا، پانی پکڑاتا اور ہر بات میں میرا خیال کرتا۔ اس کا ہر انداز مجھے اپنے قریب کرنے والا لگتا، جیسے وہ خود چاہتا ہو کہ میں اسے اپنے دل کے قریب جگہ دوں۔ کئی بار وہ سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے مجھ سے چھو جاتا اور اس چھونے میں ایک انجانی لذت چھپی ہوتی جس نے میرا دل بے قابو کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ محبت ہے، کشش ہے یا کچھ اور، مگر یہ ضرور تھا کہ میں اس کے بغیر سفر کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑکا اب میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کی باتوں میں ایک معصومیت بھی تھی اور ایک شرارت بھی، اور میں خود کو روکنے کے باوجود اس کے ہر انداز پر فدا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب ہنستا تو میں اسے دیر تک دیکھتا رہتا، وہ دل چاہتا کہ وقت وہیں رک جائے۔ سڑک کے میلوں لمبے سفر اب مجھے چھوٹے لگنے لگے کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا۔ اس کے کپڑوں کی خوشبو، اس کے بدن کی گرمی، اس کے کہکوں کی بازگشت میرے کانوں میں بجتی رہتی، اور میں سوچتا کہ اگر یہ لڑکا ہمیشہ میرے ساتھ رہے تو شاید میری تنہائی ختم ہو جائے۔ مجھے لگنے لگا کہ یہ رشتہ عام ڈرائیور اور کنڈکٹر کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جیسے میں لفظوں میں ڈالنے سے ڈرتا بھی تھا اور چاہتا بھی تھا۔ سفر کا نیا مرحلہ میرے لیے ایک خواب کی طرح تھا، کیونکہ اب ٹرک کے ہر سفر میں عدیل میرے ساتھ ہوتا۔ عدیل وہی 18 برس کا لڑکا جسے دیکھ کر میرا دل پہلی ہی ملاقات میں بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ گزرتا ہر دن مجھے اپنے اندر کھینچتا۔ وہ صبح سویرے تیار ہو کر آتا، بالوں میں ہلکی سی کریم لگا کر، قمیض کے بٹن اکثر کھولے ہوتے جن سے اس کی جوانی کی تازگی جھلکتی تھی۔ میں جب اسے دیکھتا تو نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ کئی بار دل چاہتا کہ اسے کہہ دوں کہ تم میری زندگی کے سب سے حسین لمحے ہو، مگر ہمت نہ پڑتی، بس اشاروں اور نظروں میں ہی سب کچھ چھپا رہتا۔ راستے میں جب کبھی میں سگریٹ پیتا تو وہ ہنس کر کہتا، رحمت بھائی یہ عادت چھوڑ دیں، یہ آپ کو کھا جائے گی، اور اس کا وہ انداز مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرا اپنا بن گیا ہو۔ کبھی وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا تو ایک بجلی سی وجود میں دوڑ جاتی۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ اسے دور کروں یا قریب کر لوں۔ رات کو جب لمبے سفر میں نیند کا زور آتا تو وہ خود کہتا، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، میں جاگتا ہوں، اور میں اسے دیکھتے دیکھتے لمحے بھر کے لیے سو بھی جاتا تو خواب میں بھی وہی نظر آتا۔ ایک رات ہم بلوچستان کے راستے جا رہے تھے، سرد ہوا چل رہی تھی، ٹرک کے اندر خاموشی تھی۔ عدیل میرے پہلو میں بیٹھا ہوا بار بار اپنی چادر درست کرتا
और कभी खिड़की से आने वाली हवा को रोकता। अचानक उसने चादर मेरा कंधा ढांपने के लिए फैला दी और बोला, आपको सर्दी लग रही है ना? इस लम्हे मुझे लगा जैसे वो सिर्फ कंडक्टर नहीं बल्कि मेरी जान का हिस्सा है। मैंने उसके हाथ को हल्का सा थाम लिया और वो कुछ ना बोला, बस नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगा। उसकी वो खामोश मुस्कुराहट मेरी रातों की नींद ले गई। मुझे लगने लगा कि अब ये रिश्ता हाथ से आगे निकलने वाला है। उसके अंदाज, उसकी शरारतें, उसकी कुर्बत, सब कुछ मुझे बहा कर ले जा रहा था। ढाबों पर बैठते तो वो मेरे बिल्कुल साथ लग कर बैठता और कभी कभी उसके कपड़ों की खुशबू मेरे रूह में उतर जाती। एक बार वो नीचे उतरा तो किसी ने आवाज दी, यार ये कंडक्टर कहाँ से पकड़ा है? बड़ा सोना है। मैंने वो जुमला सुना तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे कोई और उस पर नजर डाल रहा हो। मुझे इस वक्त शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। सफर के दौरान और रातें यूं गुजरती गईं और हमारा रिश्ता एक ऐसी डोर में बंध गया जैसे अल्फाज में समझना मुश्किल है। बस इतना था कि अब अगर वो एक पल को भी मेरी नज़र से उजल होता तो मेरा दिल घबरा जाता। मुझे यकीन हो गया था कि मैं अदील के बगैर जी नहीं सकता और शायद वो भी मेरे बगैर नहीं। रात का वक्त था। हम खसादार के करीब एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और आसमान पर सितारों की रोशनी थी। ट्रक के अंदर सिर्फ डीजल की महक और इंजन की घन गरज सुनाई दे रही थी। अदील मेरे पहलू में बैठा हुआ था और बार बार अंगड़ाइयां ले रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, थक गए हो? उसने अपनी मासूम सी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोला, थक गया हूँ, लेकिन आपके साथ हूँ तो लगता है सब आसान है। ये जुमला सुनते ही मेरे दिल में एक तूफान सा उठ गया। वो अल्फाज सीधे दिल पर लगे, जैसे वो इतराफ कर रहा हो कि वो मेरा है। उसकी आवाज़ में जो नरमी थी वो मेरी रगों में उतर गई। मैंने गाड़ी रोकी और कहा, चलो कुछ देर बाहर चलते हैं, टांगी सीधी कर लें। हम दोनों नीचे उतरे। सर्द हवा चल रही थी। अदील ने अपनी कमीज के बटन दुरुस्त किए। उस वक्त रोशनी सिर्फ चांद की थी और वो चांदनी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्मी मंजर हो। उसके कपड़ों की सलवटें, उसका जवान बदन, सब कुछ मेरी आंखों को कैद कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह लड़का मेरे नसीब का वो राज है जो बरसों बाद खुला है। अदील ने मेरी तरफ देखा और हंसकर बोला, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? मैं लम्हा भर को खामोश रहा और फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें देखने का दिल चाह रहा है। उसने सर झुका लिया और वो लम्हा मेरे लिए सबसे कीमती था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंका नहीं बल्कि करीब आ गया। उसकी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वो भी वही चाहता जो मैं चाहता हूँ। हवा तेज थी, उसके कपड़ों की खुशबू मेरे करीब आ रही थी और मैं खुद को रोकने के बावजूद उसके करीब होता जा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी मगर साथ ही एक शरारत, जैसे वो सब कुछ कहने के बावजूद कह ना पा रहा हो। हम दोबारा ट्रक पर बैठ गए तो उसने मेरी चादर अपने और मेरे ऊपर डाल दी। वो लंबा सफर उस रात बहुत छोटा लगा क्योंकि हम दोनों के बीच वो खामोशी और वो कुर्बत हमें एक दूसरे से बांध चुकी थी। अदील बार बार मेरा हाथ छू लेता और फिर झट से हंस देता। मैं उसकी हंसी पर कुर्बान हो गया था। उस रात जब मुझे लग रहा था कि अब ये रिश्ता किसी आम ड्राइवर और कंडक्टर का नहीं रहा बल्कि उससे कहीं आगे निकल गया है और शायद ये वही रास्ते हैं जिसे लोग बोल्ड कहते हैं। वो रात जिसका आगाज खामोशी से हुआ था अब मेरे दिल के अंदर एक तूफान बर्पा कर रही थी। अदील मेरे साथ इतने दिनों में इतना घुल मिल गया था कि अब वो मेरे बगैर एक लम्हा भी रहने को तैयार ना होता और मैं खुद भी उसके बिना अधूरा लगने लगा था। सफर की वो लंबी लंबी शाहराएं जो कभी तन्हाई का जहर बन जाती थी अब अदील की मौजूदगी में एक मीले की तरह लगती थी। वो कभी गाड़ी के अंदर बैठकर गुनगुनाता तो कभी हंसते हंसते मेरी तरफ झुक जाता। उसकी जिस्म से उठती खुशबू मुझे दीवाना कर दी थी। एक दिन शाम के वक्त हमने सड़क के किनारे एक वीरान ढाबे पर गाड़ी रोकी। रोशनी मध्यम थी और सर्दी बढ़ रही थी। अदील ने आग जलाई और दोनों हाथों को आग के करीब करके गर्मी लेने लगा। उसके चेहरे पर आग की सुर्खी झलक रही थी और उस लम्हे वो मुझे इतना हसीन लगा कि मेरी नजरें हटने का नाम ना लें। मैंने कहा, अदील तुम्हें मालूम है तुम कितने खूबसूरत हो? वो चौंक कर मुस्कुराया और बोला, रहमत भाई आप भी अजीब बात करते हैं। मैंने जवाब दिया, ये बात अजीब नहीं है, हकीकत है। वो ये सुनकर खामोश हो गया मगर उसकी खामोशी में भी एक जवाब छुपा हुआ था। हमने चाय पी और फिर ट्रक में आ गए। रात गहरी हो रही थी। अदील ने अपनी चादर मेरे साथ बांट ली और करीब बैठते बैठते वो इतना करीब हो गया कि हमारे दरमियान की फिजा ही बदल गई।
वो बार बार अपनी नजरें झुकाता और फिर अचानक मेरी आंखों में देख लेता। मुझे लग रहा था जैसे वो खुद भी इस कशिश को समझ चुका है। उसका हंसना, उसका मेरा हाथ पकड़ लेना और फिर छुपा लेना, ये सब कुछ मेरे लिए किसी ख्वाब से कम न था। एक रात तो ऐसा हुआ कि बारिश शुरू हो गई। ट्रक सड़क के किनारे रोकना पड़ा। हम दोनों भीग गए। अदील हंसते हंसते अंदर आया और कपड़ों से टपकते पानी को झाड़ने लगा। मैं उसे देखकर मदहोश सा हो गया। उसने कहा, रहमत भाई, लगता है आज की रात लंबी होगी। और ये सुनकर मैं एक लम्हे के लिए खुद पर काबू ना रख सका। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो एक लम्हे को रुका, फिर खामोशी से बैठ गया। वो लम्हा हमारे बीच एक नई लकीर खींच गया। मुझे लग रहा था जैसे हम दोनों अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अदील के अंदाज और गुर्बत ने मेरे दिल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। वो जब मेरे करीब आता तो वक्त रुक जाता, और जब वो जरा दूर हो जाता तो मैं तड़प उठता। अब हमारा रिश्ता किसी आम दोस्ती या साथ का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी आग में बदल चुका था जो हमें हर दिन मजीद करीब कर रही थी। और मैं जानता था ये आग हमें कहीं न कहीं लेकर ही दम लेगी। सफर के दौरान एक दूसरे के बगैर नामुमकिन हो गए थे। अब अदील ना सिर्फ मेरा कंडक्टर था, बल्कि मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका था जिसके बगैर मैं खुद को सोच ही नहीं सकता था। उसकी बातों में वो मासूमियत और अंदाज में वो शोखी थी जो मुझे हर पल अपनी तरफ खींचती थी। कभी वो गाड़ी के शीशे पर दिल की शक्ल बना देता और हंसते हुए कहता, रहमत भाई देखें कैसा लग रहा है। कभी मेरे जूते साफ करने लगता, और जब मैं मना करता तो कहता, आप मेरा ख्याल रखते हैं ना, तो मैं भी आपका ख्याल रखूंगा। ये जुमले सीधे दिल को लगते और मेरी सोचों में एक आग भड़काते। एक रात हम क्वेटा की तरफ जा रहे थे। पहाड़ों के बीच का वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सर्दी इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। अदील मेरे साथ दब कर बैठा था और बार बार कहता, आज तो सर्दियां हड्डियां तोड़ रही है। मैंने अपनी चादर उस पर डाल दी, मगर वो और करीब आ गया। उसकी गर्मी मेरे जिस्म में उतरने लगी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे हमारे दरमियान कोई पर्दा बाकी न रहा। मैंने गाड़ी रोक दी। बाहर कहर छाई हुई थी और रात की खामोशी हमें और करीब कर रही थी। आदिल ने मेरी आंखों में देखा और फिर नजरें झुका ली। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी खतरनाक है? वो मुस्कुरा दिया और बोला, अगर इतनी खतरनाक है तो आप मुझसे दूर क्यों नहीं रहते? ये जुमला सुनकर मेरा दिल जैसे काबू से बाहर हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो उस बार पीछे ना हटा, बल्कि मेरे और करीब हो गया। उसके लबों पर हंसी थी, मगर उस हंसी में एक राज छुपा था जो सिर्फ मैं समझ सकता था। हवा तेज थी, ट्रक के अंदर मदम रोशनी जल रही थी और हमारे दरमियान का फासला लम्हा बा लम्हा घट रहा था। मैंने महसूस किया कि अदील भी इसी कशिश में जल रहा है जिसमें मैं जल रहा हूँ। उसकी खामोशी, उसका लम्स, उसकी नजरें, सब कुछ उस बात का ऐलान कर रहे थे कि अब हम दोनों एक ही लकीर पार करने वाले हैं जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होगी। वो रात हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ थी जैसे कोई बाहर से देखता तो शायद अपनी आंखों पर यकीन न करता, क्योंकि वो आम ड्राइवर और कंडक्टर का रिश्ता नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो हदों को चीरता जा रहा था और जिसका अंजाम हमें खुद भी डरा रहा था। मगर उस लम्हे हम दोनों अपने दिल की आग की कैदी बन चुके थे। वो रात हमारे रिश्ते का सबसे नाजुक मोड़ थी। सड़क सुनसान थी, बारिश थम चुकी थी और ट्रक के अंदर मदम बल्ब जल रहा था। अदील मेरे पहलू में बैठा था और उसकी आंखों में वही तपश थी जो मेरे दिल में सुलग रही थी। हमारे दरमियान की कुर्बत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि लग रहा था जैसे एक लम्हे में हम सब कुछ भुलाकर हद से आगे निकल जाएंगे। मैंने उसका हाथ थामा। वो खामोश रहा। उसकी खामोशी एक इकरार थी। मैं उसके करीब हुआ, वक्त रुक सा गया। लम्हा भर को लगा कि हम वो सब कर डालेंगे जिसकी तरफ दोनों से बढ़ते जा रहे थे, मगर अचानक एक तेज बिजली की कड़क सुनाई दी। ट्रक के शीशे हिल गए और बाहर अंधेरा मजीद गहरा हो गया। हम दोनों चौंक गए। अदील ने फौरन अपना हाथ खींच लिया और नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे दिल में कुछ टूट गया हो। उसने कपकपाती आवाज में कहा, रहमत भाई, हम क्या कर रहे हैं? यह रास्ता कहाँ ले जाएगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल कांप उठा। मैंने भी सर झुका लिया। मुझे लगा जैसे अचानक मेरी आंखों पर से पर्दा हट गया है। मैंने कहा, अदील, तुम ठीक कहते हो, यह रास्ता हमें बर्बाद कर देगा। हमने वो सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था। हम दोनों खामोश हो गए।
बाहर बारिश के कतरे दोबारा बरसने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी हमें देखकर रो रहा है। मैंने अदील से कहा, बेटा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि शायद हमने खुद इस रिश्ते को खराब कर दिया है, मगर दिल से अब यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मगर एक ऐसे रास्ते पर जो सीधा हो, जो हमें सुकून दे। अदील ने आंसू पूछे और बोला, मैं भी यही चाहता हूँ भाई, आपने मुझे सहारा दिया है, मगर हम गुनाह के रास्ते पर नहीं जा सकते। हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गई। हम दोनों ने वही अल्लाह के सामने सर झुकाकर तौबा की, दिल से ऐद किया कि अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगले दिन से हमारा सफर वही रहा, मगर रिश्ता बदल गया। अदील ने पढ़ाई शुरू की, मैंने भी सिगरेट और नशा छोड़ दिया। हमने जिंदगी को सीधे रास्ते पर डाल दिया। लोग आज भी कहते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर की कहानी अजीब थी, मगर सच है कि ये कहानी गुमराही से तौबा और रोशनी की तरफ वापसी की है। और यही वो सबक है जो मैं सबको देना चाहता हूँ कि गलत रास्ता कभी सुकून नहीं देता। सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब दिल और नियत पाक हो, और हमने आखिरकार वो सुकून पा लिया। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुरू में शायद ये एक बोल्ड सी कहानी लगी हो, मगर आखिर में इसका असल सबक ये है कि इंसान अगर बहक भी जाए तो तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सुकून सिर्फ सीधे रास्ते में है, ख्वाहिशात के पीछे नहीं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कहाँ छुआ और आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए कीमती है और इसी से हमें नई कहानियों का हौसला मिलता है। और अगर आप ऐसी मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।